And let us start with, first of all, थोड़ा सा Werner's theory. लास्ट ईयर भी एक सवाल आया था, बट दिस क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग विद बिकॉज थोड़ा सा ये आपको आइडिया दे देगा, याद आ जाएगा आप लोग को वर्नर थ्योरी क्या थी नहीं थी. So they are saying that 1 mole of CrCl3 6H2O compound reacts with excess of AgNO3, यानी कि आप बहुत सारा AgNO3 है, and solution to yield 2 moles of AgCl. 2 moles of AgCl. Now, the number of moles of AgCl tells you about the free Cl negative ions. So in this compound, we have two Cl negatives that will be outside the square brackets and inside this. So outside the square bracket, you will have 2 chlorine. ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए 2 chlorine कहाँ पे है. So that is only in the option A, and that is the correct option. You don't have to look anywhere else. ठीक है, so it is giving you 2 moles of AgCl. That means there are 2 chloride ions present in the compound. So obviously it is going to be what? The 2 chlorines will be outside the coordination sphere. That's only option A. In the B option, we will get 0 moles. In the C option, I will get 1 mole of AgCl. And similarly, in the D molecule also, we will be getting only. This is not even correct. This is wrong. Okay, because H2Cl6, that means coordination number 9, not possible. Chlorine, sorry, chromium atom is not that large. ठीक है, तो free ions क्या बताते हैं? How many chloride ions are there? Sorry, the number of moles of AgCl, they talk about the free chloride ions. The question asked in this year's paper was an assertion reason question. So the question was this. So they are saying CONH3SO4Cl gives white precipitate with silver nitrate solution. ठीक है, so it is giving white precipitate with silver nitrate solution. It means obviously that is correct because chloride ion is what? It is a free ion and it can react with Ag to give you what? The white precipitate is for AgCl, is from what? It's from AgCl. So they're saying the complex dissociates to give Cl negative and SO4 2 negative ions. So this statement, the reason statement is wrong because the complex will dissociate to give you cobalt NH3 whole 5 SO4, which will be inside the square brackets and with a negative, sorry, positive charge. And there will be chloride, one chloride ion with a negative charge. So obviously we are not getting SO4 2 negative ions. I am only getting the chloride ion. This whole complex itself is an ion. So this reason statement is not true. It is false. So assertion is true, but reason is false. C is the correct option. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. This statement is true. Yeah, for sure it is going to give you AgCl when we are reacting with silver nitrate solution. This makes sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. Now, दो सवाल हैं यहाँ पे. ठीक है, सो तीसरा का आप लोग जवाब दीजिए जरा. वी हैव done this type of question when coordination compound CrCl3 6H2O is mixed with AgNO3, 2 moles of AgCl precipitated per mole of the compound. Write the structural formula of the complex. ठीक है, so try to answer this one and then try to answer this fifth one, और ये fourth वाला हम आप लोगों को बताएंगे. ठीक है, so I'm going to give you guys what, 2 minutes will be enough for this, I guess. ठीक है, for the third one and for the fifth one. First of all, how many free Cl negative ions are there that you will get by looking at the number of moles of AgCl that will be outside the coordination scale. उसके बाद फिर आप लोग आंसर दे सकते हैं. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स गाइस, तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा. एंड आई एम गिविंग यू गाइस 3 minutes, आराम से कीजिए. यू कैन लुक एट इन योर नोटबुक जहां पे भी आपने नोट्स लिखा है, एंड यू विल सेंड द आंसर ऑन द जूम चैट और व्हाट्सएप. यार ये बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? इफ आई आस्क देम टू ज्वाइन नाउ. प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल की वजह से छोड़ रहे लगता है, और दूसरा हमने बोल दिया ना 2 2 बार लेंगे, इस वजह से भी छोड़ रहे होंगे. फर्स्ट इसमें इतना कम बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे.
ग्रुप में आप लोग को ऐसे नोटिफिकेशन आता नहीं है क्या? मरियम खातून, अच्छा मरियम खातून, कब ज्वाइन किया आपने? अभी? Yes, sir. अच्छा, भूल गए थे? ये No, क्लास sir. अभी खत्म? I was eating. अच्छा, यू वर ईटिंग, ओके। शाहिद, आपका बायो है? No, sir, Max. मैथ्स। कृष्ण प्रिया, थोड़ा सा फर्स्ट वाला देखिए जरा, फर्स्ट वाला ऐसा नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा फर्स्ट वाला। लुक एट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जा रहा है? यूसुफ, फर्स्ट वन, हाँ जी सही है, ठीक है, वेरी गुड। क्लोरीन्स तो सही है, वाटर देख लीजिए एक बार कृष्ण प्रिया। यूसुफ, फर्स्ट वन इज करेक्ट। Sorry, sir. फॉर द फर्स्ट वन, फर्स्ट मीन्स Yeah. द थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा देख लीजिए। आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट ना। थर्टी मोर सेकेंड्स। टाइम इज अप। हाँ शायद ठीक है, देखिए। For the first question, 2 moles of AgCl are precipitated. That means we have two Cl negative, that are free Cl negatives, and the formula of the compound is going to be Cr। बाहर आपके पास एक दो क्लोरीन रहेंगे तो अंदर एक रहेगा Cr, वन क्लोरीन, एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 से ज्यादा आपको करना नहीं है, सो H2O will be 5। 5 H2O are inside, one chlorine is inside, two chlorines are outside, and one H2O molecule is also outside. Similarly, for the fifth one, for the fifth one, यहाँ पे आपके पास 3 moles of Ag से, that means 3 moles of Cl negatives are free, तो आपके पास there will be 0 NH3 outside, all the NH3 will be inside, and all the chlorine will be outside. So cobalt NH3 will be whole 6, and you will have Cl3 outside. Make sense, everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Krishna Priya, got this? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. Now, what are double salts and coordination complexes? ठीक है, तो इसमें जो basic difference होता है, the basic difference is double salts gets completely ionized, and double salt gets completely ionized and loses its identity in solution. अगर आप इसको पानी में डालेंगे, then the double salt will lose its identity in aqueous solution, whereas coordination complexes don't। ठीक है, पानी में डालेंगे तो डबल सॉल्ट नहीं नहीं रहेगा, बस ये लिखना है आप लोगों को। एक मार्क का सवाल आएगा, ज्यादा से ज्यादा आया तो ऑल दीज आर वन मार्क क्वेश्चंस। जो कि आता नहीं है एमसीक्यू में किसी तरह से आया तो डबल सॉल्ट दे लूज देयर आइडेंटिटी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, जल्दी से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। A lot of questions can be asked from the definitions, some important definitions, और जो सिंगल वन वन मार्क्स का अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए इसका, इस तरह के सवाल आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, सो
डेंटिसिटी वगैरह ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्या है नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह है। ऑक्सीडेशन नंबर इज शुड आल्सो बी नोन अगर आपका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करना है तो, है ना। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COEN होल थ्राइस, दिस इज ट्वाइस, होल थिंग इज ट्वाइस, एंड SO4 3, SO4 थ्राइस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो EN की वजह से तो 0 होगा, एंड देयर आर 2 कोबाल्ट यहाँ पे बिकॉज होल्ड कोबाल्ट इज 2, सो 2x प्लस SO4 में होता है 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो 3 है और -2, this whole thing will be equal to 0. So I can say 2x minus 6 is equal to 0. X will be equal to 6 by 2, that is equal to plus 3. See, so this is how we are going to calculate. Which of the following ligands form chelate ligands? तो chelate में आपको by definition bidentate या didentate और polydentate ligands क्या है ना, कि जिसका डेंटिसिटी एक से ज्यादा हो। Aqua is mono, CN is also monodentate, oxalate is bidentate, and Cl negative is also monodentate. C, so only C is what? C is going to be the one which can form a chelate. The coordination number of chromium in Cl2, तो coordination number निकालने के लिए जो भी ligand है, ligand 1 into its denticity, denticity of the first ligand plus ligand 2 into its denticity and so on. This is the formula that you can use. The first ligand है आपके पास Cl, कितना है ligand, पहला वाला 2 है, ठीक है, we have 2 chlorines, denticity is 1, then the second chlorine कितना है हमारे पास, we have 2, sorry, oxalate, oxalate कितना है, 2 है, तो 2, so 2 1 are 2 plus 4 is equal to 6, है ना। तो भले ही आप लोग ये सारी चीजें दिख जाएंगी, है ना, 6 आपके पास यहाँ पे ऑप्शन। नाउ another question that was asked is assertion reason, और एक और था आपका, these MCQs are recently asked, और MCQ के लिए ना हम लोग एक और चीज करेंगे, we will look at the NEET PYQs, because NEET से हमने देखा है कि डायरेक्टली कुछ सवाल जो है वो NEET में जो आए हुए हैं ना, दे हैव बीन आस्क्ड इन द पी, मतलब जो बोर्ड्स के PYQ में, बिकॉज NEET का लेवल इट इज एग्जैक्टली NCERT। NEET में तो अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में आता होगा, केमिस्ट्री में दे आस्क्ड एग्जैक्टली NCERT, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। इफ समथिंग इज देयर इन दी NCERT टेक्स्ट बुक, वो है फिर सवाल, ठीक है। तो कुछ हम लोग नीट के भी क्वेश्चंस देख लेंगे, इन जनरल देखेंगे, बट विल नॉट लुक इट, आई मीन चैप्टर वाइज देखेंगे अगर टाइम मिला तो। चलिए, सो वी हैव PTEN होल ट्वाइस Cl2 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल देन, ठीक है, देन PTNS3 होल 4 Cl2, सो दिस इज ट्रू बिकॉज EN इज अ chelating ligand, और हमने लिखा था कि chelating, we have seen that chelating ligands are more stable than normal ligands। तो यहाँ पे NH3 है तो obviously it is less stable बोला, तो this is false statement, है ना, क्योंकि जो चीलेट वाला होता है, दिस इज चीलेट वाला, PTEN whole twice is a complex which is having chelate ring formation, and they are saying it is less stable, so this statement is false, and as soon as you get the assertion as false, D option is the only correct option। बाकी सब में क्या होता है ना, assertion correct है, assertion reason correct है, assertion correct है, D option में assertion is incorrect, you don't even have to see the reason। अगर आपको assertion false मिल गया तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वो D option जनरली यही रहता है। What is the oxidation state of nickel in nickel carb CO whole 4? So CO it is carbon, वो कार्बोनिल होता है, this carbonyl group is what it is having 0, ऑक्सीडेशन नंबर कोई चार्ज वगैरह इसमें होता नहीं है, न्यूट्रल है ये, so oxidation number of nickel is also going to be 0। ये तो खैर मोटी मोटी बातें हो गई। Now we are going to move on to the main part, that is the nomenclature। So nomenclature has been asked in every year, 2021 हो गया, and 23 में दिया नहीं है इन्होंने, 23 के सवाल थे लेकिन कॉमन लेक्चर्स का तो नोट गिवन, ये बुक में इन लोगों ने ना लिखी हुई है। अच्छा ठीक है, फाइन, सो ओके ओके फाइन, है 2023 का, बट थोड़ा सा ये हो गया है, फाइन, वो बाद में फिर आएगा 2013, कम से कम एक दो सवाल हो जाए, है ना। 2023 शेप एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर,
चलिए, ये सवाल है जो कि हम लोग असल में इट वाज आस्क्ड इन लाइक केस बेस्ड क्वेश्चन। तो वो एंड इन दैट केस बेस्ड क्वेश्चन देयर आर क्वेश्चंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह का भी सवाल है। ठीक है, सो पहले तो एक एमसीक्यू आप लोग रख लीजिए। ठीक है, ट्राई दिस वन। चलिए, ट्राई दिस, प्लीज ट्राई दिस। आसान सवाल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। इसके एमसीक्यू में ना आप ऑप्शन देके पहले कुछ ना ये कर लीजिए। ओह बाप रे, इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए? आयशा, व्हेन डिड यू ज्वाइन? आयशा, ये हमको ऐसे नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा कोई ज्वाइन कर रहा है तो। आयशा, आयशा आपने कब ज्वाइन किया? इरम, व्हेन डिड यू ज्वाइन? 8:15। 8:15। अच्छा, कैसा गया आपका आज प्रैक्टिकल? नहीं, कल खत्म हो गया। सॉरी? कल खत्म हो गया था। अच्छा, कल था आपका केमिस्ट्री? नहीं नहीं, सैटरडे था। सैटरडे था। अच्छा, कैसा गया? नहीं अच्छा गया? नहीं, नहीं, क्यों? तो मैंने लिखा है सब कुछ, लेकिन एक्सपेरिमेंट सही नहीं था। एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे सही से? नहीं, सॉल्ट ही नहीं सॉल्ट मिला। नहीं, सॉल्ट नहीं मिला? नहीं, और लास्ट टाइम वाइवा? मिल गया, बट या वाइवा बहुत आसान था। वाइवा में क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने ऑप्शन दिया कि थ्योरी में से पूछे या फिर प्रोजेक्ट में, तो ऐसे थ्योरी एंड देन उन्होंने सोल्यूशन से पूछे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एब्नॉर्मल मोलर मास एंड ऑल। तो दे दिया आपने जवाब, ठीक ठीक। यस। बाकी लिख दिया ना आपने, मतलब सॉल्ट नहीं मिला, और बाकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और फंक्शनल प्रूफ। नहीं, वो सॉल्ट टीचर ने बता दिया, इंटरनल टीचर ने। अच्छा, और क्या सॉल्ट था वैसे? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। मिल बाकी बच्चों को मिल रहा था? नहीं, उन्हें भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, फिर हो सकता है वो थोड़ा सा उसमें ये होगा, मतलब मिक्स हो गया होगा, कुछ और मिक्स हो गया होगा, हो सकता है। सर एक्चुअली क्या था ना, वो अमोनिया का कंफर्मेटरी कर रही थी, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। खैर, ऑप्शंस तो अभी तक बहुत कम आए हैं। ठीक है, आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक। खैर, तो टेट्रा अमीन, तो चार अमीन तो सब में है, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला आपका, है ना? आगे चलते हैं। टेट्रा अमीन क्लोरिडो। टेट्रा अमीन क्लोरिडो, क्लोरिडो यानी कि आपके पास बस एक क्लोरिडो है। तो पहला ऑप्शन मे बी ये हो सकता है, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, है ना? बिकॉज क्लोरिडो होना चाहिए कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी। आगे बोला हुआ इन्होंने नाइट्रीटो एन। नाइट्रेटो एन क्या होता है, अब यहीं पे सवाल आ जाएगा। नाइट्रोटो एन क्या होता है? NO2 होता है या फिर ONO होता है? व्हाट इज नाइट्रेटो एन? अरे बोलो भाई, अरे आसान तो है। क्या होगा नाइट्रेटो एन? NO2 sir. NO2 ना? तो क्या ऑप्शन होगा फिर? C sir. गॉट इट एवरीवन? ये सुनो, क्यों बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आया था? और इरम, आपने क्या आंसर किया हुआ है? आपने ए किया हुआ है जल्दी में।
हाँ कुछ तो बोले, कुछ ही नहीं आंसर नहीं किया। सफिया, तारीफ, कृष्ण प्रिया, आयशा, डेबोरा। चलिए आगे बढ़े ना, तो आई होप आप लोग को थोड़ा कुछ याद आ गया हो अब। ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन दिस ईयर्स पेपर। तो इस साल पेपर में आपका आईपैक नॉमेनक्लेचर का जो है डायरेक्ट सवाल है, बट इट इज इनसाइड 4 मार्क क्वेश्चन, केस बेस वाले के साथ में तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी था इधर। Now they are asking two things, both the things. Write the formula for iron 3 hexacyanidopherate 2, and write the IUPAC name of cobalt NH3 whole 5 Cl and इधर यहाँ पे Cl twice। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसी का हम लोग कर लेते हैं, आईपैक नेम लिख लेते हैं, बाद में फिर उसको देख लेंगे हेक्सासाइनाइडो वाले को। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो NH3 का होता है 0, सो इट डजंट मैटर। Cl इज -1, Cl विल बी 2 नेगेटिव। ठीक है, एंड इसी को बैलेंस करने के लिए कोबाल्ट आएगा, तो कोबाल्ट विल बी +3, सो कोबाल्ट विल बी हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को पूरा एक्स वाई करके निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ यू आर हैविंग स्टिल प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, देन अभी मत बोलिए, आप जाके लेक्चर्स देखिए, आप जाके अपने नोट्स देखिए, आपको ही अब ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अब हम आपको कुछ और नया नहीं बता सकते इन टर्म्स ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड आई होप किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे वी विल बी गेटिंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड the ligands we have here is amine, and here we have chlorido. So we have one amine, so sorry, 5 amines, my bad, we have 5 amines, so we'll be having penta amine, एंड ए पहले आता है अमीन और क्लोरिडो में, एंड पेंटा अमीन क्लोरिडो, क्लोरिडो, पेंटा अमीन क्लोरिडो, एंड देन वी विल हैव कोबाल्ट। Cobalt will be having oxidation state 3, and then you will have chloride. डाइक्लोराइड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, विल जस्ट राइट क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आयरन 3 हेक्सासायानिडोफेरेट। तो हेक्सासायानिडोफेरेट पहले हम लोग कर लेते हैं। हेक्सासायानिडोफेरेट विल बी व्हाट, हेक्सासायानिडोफेरेट, फेरेट मींस आयरन, साइनिडो मींस Cn, एंड हेक्सा मींस 6, एंड इस पे उन्होंने, और यहाँ पे आपके पास Fe है। ठीक है, नाउ फेरेट पे उन्होंने दिया हुआ है +2 चार्ज, Cn पे होता है -6 हो जाएगा। सो दिस होल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विल बी हैविंग व्हाट चार्ज, इट विल बी हैविंग -4। इस पूरे पे क्या चार्ज होगा, दिस विल बी -4। और आयरन का इन्होंने दिया हुआ, यहाँ पे आयरन कितना है, दिस इज 3। ठीक है, आयरन 3 है, हेक्सा साइनाइडोफेरेट 2। ठीक है, नाउ अब आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आपको याद हो कि ये 3 है और ये 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एंड द कॉम्प्लेक्स विल बी Fe4, in brackets you will have FeCN6 whole thrice. So this will be the complex. ठीक है, please write this down. ये सवाल एक बार आपको पूछा जा चुका है 2018 में भी, in 2018 also it has been asked. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। Let us see some more questions. नेम और फॉर्मूला दोनों ही आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है, तो दो दो और करते हैं बस। We will see 2 names and then we will see 2 formula. तीन आगे चलिए, कुछ बात नहीं। और रीसेंट हो तो ज्यादा अच्छा है ना, तो रीसेंट ले लेते हैं।
So let us discuss these. चलिए यहाँ पे तीन है, तीन डिस्कस कर लेते हैं. This is going to be 6 amines are there. Here we have cobalt and यहाँ पे आपके पास क्लोराइड है, तो बहुत ही आसान हो गया यहाँ पे पहला वाला. First is going to be hexa amine cobalt. Cl3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -3 होगा, इसका +3 हो जाएगा. It will be 1 2 3 and then you'll have chloride. ठीक है. For the next one, here we have nickel and यहाँ पे we have 4 chlorido and it is an ion, so we will write tetra chlorido nickel. अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, निकलेट हो जाएगा बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, है ना. तो कटायन और न्यूट्रल होता है, तो वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ मेटल आयन एज इट इज. व्हेन इट इज एन एनायन तो हम लोग 8 से एंड करेंगे, सो इट विल बी निकलेट एंड द चार्ज विल बी व्हाट, इसके लिए -4 + 2 विल बी इक्वल टू +2 ना, तो निकलेट 2 हो जाएगा यहाँ पे. थर्ड इज K3, तो यहाँ पे पोटेशियम. Then we have 6 cyanido, hexacyanido. ठीक है. और फिर अगेन द कॉम्प्लेक्स आयन इज anion. K3 is a cation, hexacyanido ferrate. The coordination number, sorry, the oxidation state of ferrate is going to be ये Cn की वजह से -6 और K3 की वजह से +3. अरे ये क्या हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. ये कभी कभी ऐसा होने लगता है इसमें, पता नहीं क्यों. एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है. सो Cn की वजह से होगा -6 एंड K3 की वजह से होगा +3, सो दिस विल बी -6 +3 उधर जाके हो जाएगा, +3 बचेगा. ठीक है ना, तो Fe will be +3 here. Ferrate 1 2 3. ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ फॉर दिस पोटेशियम, तो पोटेशियम हो जाएगा K tetrahydroxido zincate. Tetrahydroxido means zincate Zn. Hydroxido is OH negative and how many? 4 OH negative. And what is this whole complex will be having a charge of zincate. It is +2 -4. That means this whole complex will have a charge of -2. Potassium भी जो charge होता है that is 1. So when you cross multiply, this complex will be K2 Zn OH whole 4 like this. ठीक है. आई होप ये सबको पता है कि नहीं पता है क्या हो रहा है यहाँ. और इफ यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर ना, इट इज बेसिकली जो हम लोग करते थे, एल्यूमिनियम और क्लोरीन का हमको कंपाउंड बनाना था. एल्यूमिनियम इज हैविंग 3 वैलेंसी, क्लोरीन का होता है 1. ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन वी रोट AlCl3. द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट इज हेक्साअमीन प्लैटिनम. हेक्साअमीन प्लैटिनम आ जा रहा है, तो सबसे पहले इसको वैसे ही लिख देते हैं. प्लैटिनम इज Pt, हेक्साअमीन इज NH3 6 एंड उसके बाद क्लोराइड Cl एंड हेक्साअमीन प्लैटिनम इज 4, NH3 विल बी 0, Cl का होता है 1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Cl4 हो जाएगा. सो वी कैन, ये आपके पास यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 इधर 1 इधर, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स जो आएगा, द कॉम्प्लेक्स विल बी प्लैटिनम NH3 whole 6 and Cl4. So this will be the formula of the compound. ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आइसोमेरिज्म की तरफ, है ना. तो आइसोमेरिज्म से भी लगातार आपके पास देयर विल बी ऑलवेज 1 मार्क्स 2 मार्क्स, 1 मार्क्स से सवाल तो आप मान के चलिए कम से कम. फ्रॉम आइसोमेरिज्म्स स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहले, उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव ऑन टुवर्ड्स द स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स. ठीक है. नाउ again isomerism, maybe structural isomerism is not very tough I hope for you guys. जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, वो भी आप खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप लोगों को दिक्कत होगी बिकॉज हमने पढ़ाया बहुत ज्यादा है आइसोमेरिज्म में. वी हैव सीन मेनी केसेस, है ना. उतने ज्यादा केसेस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं. ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे द कंपाउंड्स कोबाल्ट SO4 NH3 whole 5 PR.
ये एक अनायन हो गया और ये एक अनायन हो गया, एंड कोबाल्ट Br NH3 5SO4. So you can say that there is a exchange of ions happening. Br अंदर जा रहा है, SO4 बाहर आ रहा है. तो please tell me what isomerism here. 32nd number question. I will wait for 30 seconds. टाइमर लगा देते हैं हम 30 सेकंड का. एक आंसर आया अभी तक. ओनली वन आंसर गाइस, जल्दी बताएं थोड़ा. 30, 29, 28, 27, Shahid and 26, Shahid is correct. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है. ओ, कुछ लोगों का गलत हो गया. ठीक है, देखिए आयंस अंदर और बाहर होते हैं. देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ आयंस. तो यहाँ पे देखिए Br नेगेटिव आयन मिलेगा, यहाँ पे SO4 नेगेटिव. बाकी सारी चीजें सेम है. जब आयंस डिफरेंट होते हैं तो आयोनाइजेशन आइसोमर, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, जो भी सी के अलावा कुछ और लिख रहे हैं दैट इज रॉन्ग. Again, we have pair cobalt NH3 Cl2 and Br2, cobalt NH3 Br2 Cl2. Again, here also what is the, मतलब इन दोनों में चेंज क्या, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपके पास आयंस किसके मिलेंगे? Br2 का, और यहाँ पे Cl मिलेंगे. बाकी सारी चीजें सेम है. So the only difference here we are having is for the ionization isomers होंगे because the ions are different. बाकी कुछ यहाँ पे अलग नहीं. Now, next is linkage isomerism arises in the coordination compound because of ambidentate ligands. That's the first line we write whenever we talk about the linkage isomer. It is shown by only those compounds which have ambidentate ligands. So that is why this is a true statement. On and itself it is a true statement. इसको किसी reason की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो ambidentate ligand like NO2 has two different donors, that is nitrogen and oxygen. ठीक है. अच्छा, now this reason may be true यहाँ पे because they are saying ambidentate ligands such as NO2. तो this reason will also be true. this reason तो सही है. और क्या लिख रहा हूँ, एक सेकंड. This reason is also true. Now if I write the assertion because reason statement, तो it will read like this: linkage isomerism arises in coordination compound because ambidentate ligand like NO2 has two different donor atoms. तो वहां पे linkage में फर्क आ जाता है. ठीक है, so for this the correct option is going to be A, because all the three statement, assertion, reason and assertion because reason, all of these things, and more importantly assertion because reason is making sense. ऐसा नहीं कि इसका, it is not looking like a senseless statement. So this A option will be correct. ठीक है, so assertion true, reason true, and assertion because reason is also true. That means it is the first option number A. Let's look at some other questions. Now ये आपका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के, हम अब आगे बढ़ते हैं. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द अच्छा कोऑर्डिनेशन स्टीरियो आइसोमरिज्म से आपके पास 2023 में कोई सवाल नहीं है. ऐसा हो सकता है क्या? जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई एम प्रेफरिंग टू लुक एट द रीसेंट क्वेश्चंस. 2020 के बाद से वाला है ना. On the basis of crystal field theory, explain that the hybridization वगैरह वगैरह वगैरह. Okay. Spin more stable IUPAC. Hybridization more stable magnetic character वगैरह वगैरह वगैरह. Crystallization magnetic behavior. Secondary valency does not react. Crystal field theory केस में शायद कुछ हो. Hybridization magnetic behavior. Crystal field theory is valence bond theory. IUPAC bonding importance. Actually it complexes are more stable. नहीं, कुछ है नहीं 2023 में, कुछ नहीं. बट स्टिल चलिए, तब तो फिर हम लोग बाकी जो पुराने जितने भी सवाल हैं उन सारों को हम लोग एक बार देख सकते हैं कम से कम. ठीक है, सो जहां पे देखिए, अगर इफ दे आस्क ना व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर, इसके आइसोमर का क्या नाम होगा, इस तरह के तो सवाल थे जहां तक हमको आया. लेकिन लिंकेज आइसोमर का था, पता नहीं वो सवाल कहाँ पे है यहाँ. ठीक है, खैर
what type of isomerism is shown by the complex cobalt COEN whole twice Cl2? ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा, देखिए हम ना अब यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट डाउन कीजिए यहाँ पे, ठीक है। पहला सवाल जिसमें क्या आया है, बाइडेंटेट लिगेंड। दूसरा सवाल जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड। तीसरा सवाल जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड। चौथा सवाल जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड। सिक्स्थ क्वेश्चन जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड। देन उसके बाद आपके पास NH3 होल ट्वाइस Cl2, फिर उसके बाद बाइडेंटेट, फिर उसके बाद बाइडेंटेट, फिर से उसके बाद बाइडेंटेट, उसके बाद NH3 होल फॉर Cl2। अब आपको क्या यहाँ नजर आ रहा है, दैट देयर इज अ, बस एक टाइप का सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है, और ये और दिखा देते हैं जरा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है। दिस इज मोनोडेंटेट, ये मोनोडेंटेट है फिर से, लेकिन बाइडेंटेट लिगेंड आ गया। हियर आल्सो इट इज मोनोडेंटेट, ठीक। फिर उसके बाद बाइडेंटेट बाइडेंटेट बाइडेंटेट, ठीक है। चलिए इतना ही सवाल है अभी तक स्टीरियोआइसोमेरिज्म में। व्हाट यू कैन सी हियर कि बाइडेंटेट लिगेंड वाला जो केस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, सबको नजर आ रहा है ये सोनो प्लीज टेल मी गाइस। द केस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप रिवाइज करें आइसोमेरिज्म को, स्टीरियोआइसोमेरिज्म को खासतौर से, सो प्लीज डोंट लीव द बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। अक्सर ये होता है कि आप मोनोडेंटेट की तो तैयारी करके जाएंगे, लेकिन सवाल जो आप दिख रहा है आपको PYQs में क्या आया हुआ है, बाइडेंटेट लिगेंड ही आया हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे वो बाइडेंटेट लिगेंड को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्लीज मत कीजिएगा। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, what type of isomerism is shown by the complex COEN whole twice and Cl2? तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल, अच्छा, नेम द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स व्हिच इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। सो सबसे पहले तो ये आपके पास क्या है, कोबाल्ट EN whole twice Cl2। तो आपके पास एक मेटल एटम है विच इज हैविंग अ बाइडेंटेट लिगेंड, दो बाइडेंटेट है, और एक मोनोडेंटेट, एक टाइप का मोनोडेंटेट लिगेंड है A। सो इफ यू रिमेंबर दिस कॉम्प्लेक्स, तो इसमें आपके पास मेटल A A, ठीक है, ऊपर A और नीचे A, एक इस तरह से बनता है। एंड देन यू कैन हैव वन मोर कॉम्प्लेक्स लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6, जहां पे आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड ऐसे आमने सामने आ जाए और A इस तरह से आ जाए। सो इफ यू रिमेंबर दिस इज द ट्रांसफॉर्म, और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, देन दिस इज व्हाट, दिस इज द सिस फॉर्म, ठीक है। नाउ टेल मी, इज देयर एनी स्ट्रक्चर ऑफ दिस आइसोमर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव? तो ये ट्रांस वाला फॉर्म, तो इट विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज इफ यू रिमेंबर द क्राइटेरिया, अगर आपके पास इफ यू हैव टू सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री, जैसे कि A और A, these are at 180 degree, these are two same ligands, then this will not show what the optical isomerism, it will not be optically active। ये ट्रांसफॉर्म तो इसका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट द सिस फॉर्म, टेल मी गाइस, will the cis form be optically active? Yes. पक्का? है ना, cis form will be optically एक्टिव, ठीक है, बिल्कुल ये लिखाया हुआ होगा नोटबुक में। और इसका सिस फॉर्म का अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव करना है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यस, नेम द स्ट्रक्चर अगर बोला हुआ है तो आप बोलिएगा सिस फॉर्म ऑफ दिस विल बी व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव। और कैसा इसका सिस फॉर्म बनेगा, यहाँ पे आपके पास मेटल है, एंड 1 2 3 4 5 6, वी विल हैव A यहाँ पे, और उसके बाद दूसरा A यहाँ पे इस तरह से होगा, एंड A विल बी लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज, दीज टू आर व्हाट, द एनांशियोमर्स, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू शो, इट इज गोइंग टू शो बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा ये, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, एंड दीज टू आर दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। आगे COEN होल थ्राइस। तो जब भी आप देखिए, काउंटर आयन आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन व्हेन यू टॉक अबाउट स्टीरियोआइसोमेरिज्म, तो आप काउंटर आयन देखने की आपको जरूरत नहीं है। और इसके बारे में पूछा जाए, कोबाल्ट EN होल थ्राइस Cl3, what type of isomerism is shown, and it is going to show you what, it is going to show you only and only optical isomer, ठीक है। ये पहला ही केस था जब आपके पास MAA होल ट्वाइस था, होल थ्राइस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस जहां पे आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर।
यू डोंट हैव टू राइट हियर एनीथिंग, है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, देन यू जस्ट नीड टू राइट, यू हैव दिस इज गोइंग टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जहां ड्रॉ करने की बात आएगी वहां पे आप ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, दिस PTEN होल ट्वाइस Cl2, इट इज सिमिलर टू द वन विच इज प्रेजेंट हियर। इसका वही सिस और ट्रांस वाला फॉर्म बनेगा, ठीक है, सिस और ट्रांस वाला फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल हमारे पास पहले ही आ चुका है ना, रिपीटेड, रिपीट बोल देंगे इसको, रिपीट हो चुका है, दिस इज रिपीटेड। सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्टली, मतलब देखा जाए तो एग्जैक्टली सेम टाइप का सवाल है। अगला सवाल अगर आप देखें, देन इट इज अगेन सेम, ड्रॉ वन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच इज ऑप्टिकली एक्टिव, रिपीटेड सवाल, ठीक है, रिपीटेड सवाल। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स NH3 होल्ड वाइज। अब यहां पे देख लीजिए जरा, प्लैटिनम आपके पास 4 बॉन्ड्स हैं, यू हैव, एक बार आप NH3 को अपोजिट में रख दें और Cl भी आपके अपोजिट में आ जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, टेल मी व्हाट, ट्रांसफॉर्म, है ना। और प्लैटिनम आप क्या करें, NH3 इस साइड, NH3 इस साइड, क्लोरीन भी इसी साइड, क्लोरीन भी इसी साइड, दिस इज गोइंग टू बी द सिस फॉर्म, ठीक है। तो दिस आर द ट्रांस एंड ये सिस है, ये ट्रांस है ना, दिस इज ट्रांस माय डियर, ठीक है। सो ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गया आपके, खत्म, ठीक है। सिस एंड ट्रांस आर व्हाट, दीज आर द ज्योमेट्रिकल, बस यही दो पॉसिबिलिटीज है, देयर आर नो अदर पॉसिबिलिटीज। NH3 या तो NH3 के अपोजिट होगा या तो NH3 Cl के अपोजिट होगा, ठीक है। Now write down the IUPAC name of the complex. What type of isomerism is shown? This again is repeated question. ये फिर से repeat हो चुका है. Draw the geometrical isomers of the complex PTEN whole twice Cl2. This is again repeated question. ठीक है, तो 1 2 3 4 4 रिपीटेड हो गए आपके पास। हमने 41 से 47 8 कितना, 1 2 3 4 5 7 सवाल, 7 में से 4 रिपीटेड है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह की रिपीटेशन हो सकती है केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आगे आए अगर, then write the IUPAC name of the complex PTEN whole twice Cl2, फिर से वही सेम सवाल रिपीटेड। CrNH3 whole 4, अब ये भी रिपीट हो चुका है ना, ये तो वही था ना हमारे पास, ये वाला कॉम्प्लेक्स कहाँ गया आपका, ये जो अभी हम लोगों ने, अच्छा ये नहीं बनाया, नहीं नहीं ये भी तो बनाया अभी हम लोगों ने, नहीं ये नहीं बनाया क्या, ऐसा सवाल था ना एक, कहाँ गया, अच्छा होल्ड ट्वाइस वाला था, ठीक है चलिए ये भी बन जाएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। राइट द IUPAC नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म मेटल A4B2 टाइप का है, ठीक है। A4B2 में क्या होता है ना कि आप मेटल में पहले एक बार B को अपोजिट रखते हैं, सो एंड A आपके पास भी अपोजिट आ जाएंगे, A, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। और बस आप मेटल की जगह Cr रख दीजिएगा, ठीक है, और A की जगह NH3 रख दीजिएगा, ऑल ऑफ यू गाइस, एंड यू विल कीप क्लोरीन इंस्टेड ऑफ B। जो आपका सिस फॉर्म होगा दैट विल बी मेटल, और यहाँ पे B और B को साथ में, बाकी A इस तरह से रख दीजिए, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सिस फॉर्म, ठीक है। इंस्टेड ऑफ B you just need to put chlorine, instead of metal you need to put chromium, and instead of A you need to put NH3, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये सवाल तो थोड़ा सा मेरे को लोचा लग रहा है, ये सवाल सही नहीं है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक, दिस इज ऑल्सो फाइन, ये सही है सही है, NH3NO2 इज ओनली वन ना, हाँ ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन। चलिए, उससे पहले जो रिपीटेड है उनको हम लोग देख लेते हैं, दीज टू आर रिपीटेड। कोबाल्ट EN होल थ्राइस हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। PTNH3 होल ट्वाइस Cl2 वी हैव ऑलरेडी सीन दिस हियर, ये वाला था सिस और ट्रांस वाला, है ना। इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन, आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अब ये जो पहला वाला है कोबाल्ट NH3, इट इज व्हाट टाइप, मेटल है और आपके पास A5 और B है, ठीक है। A5B, does this show any type of isomerism, tell me guys? ठीक है, आपको तो वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन NO2 की वजह से कुछ शो करेगा, NO2 की वजह से, नहीं नहीं देखो, NO2 की वजह से कोई शो करेगा, NO2 की वजह से क्या शो करेगा, कौन सा आइसोमेरिज्म, कुछ तो शो करेगा, याद कीजिए आप लोग।
NO2 की वजह से क्या शो करेगा? अरे अभी तो पढ़ाया था, कुछ लोगों का आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, अगेन 30 सेकंड्स आई विल गिव यू गाइस। कुछ का आंसर आ रहा है, कुछ का आंसर आ रहा है, ठीक है। अगेन 30 seconds फॉर यू। 30, 29, 28, 27, 26, हाँ 25, शावेश सही है, शावेश सही है। 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, आप स्टीरियोआइसोमेरिज्म से भी आगे सोच सकते हैं। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब आया ना लिंकेज आइसोमर गाइस। NO2 इज एम्बिडेंटेट लिगेंड, तो उस वजह से ये क्या शो कर सकता है? लिंकेज। नॉट सेइंग ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेगा, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। सो दीस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कैन आल्सो बी आस्क्ड। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डज इट एक्सिबिट, ये फिर से आप लोग को दिख रहा है कि दैट इज रिपीटेड, है ना। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इट इज गोइंग टू शो, ठीक है ना। ये किस तरह का शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। Draw the structures of optical isomers of each of the following complexes. ये यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में गलती है। सवाल में यहाँ पे C2O4 होल थ्राइस होगा, ठीक है। दैट दे हैव नॉट रिटन। दिस इज द सेम एज ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास, है ना, सेम। PtCl2An होल ट्वाइस, ये भी हम लोगों ने देख चुका है, रिपीटेड है ये। देन वी हैव CrNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये हमारे पास एक नया है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। So you have metal, और इसमें there is one bidentate ligand, there is A2 and then there is B2. सही है गाइस, देख लीजिए जरा एक बार। This is the complex that we are having. हाँ जी, ठीक है। अब इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड यू विल एटलीस्ट गेट वन ऑप्टिकल आइसोमर, तो आपको एक मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड कैसे बनेगा ये? 1 2, लेट मी मेक इट अ बिट प्रॉपर्ली, थोड़ा सा इसको सही से बना देते हैं। ये आप लोग जैसे EN लिख देते हैं, चलिए हम EN ही लिख देते हैं, इसको सही से बना देते हैं, CR लिख देते हैं इसको। यहाँ पे EN आ जाएगा इस तरह से, और फिर NH3, NH3, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। सो एक तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इज देयर एनी अदर कॉम्प्लेक्स दैट वी कैन मेक? Cl के अपोजिट EN है, दूसरे Cl के अपोजिट NH3 है। अगर हम NH3 को इधर रख दें, दोनों NH3 को अगर हम यहाँ रख दें, और क्लोरीन को अपोजिट रख सकते हैं, दैट कैन बी वन केस, है ना। एक तो ये इस तरह का मिल जाएगा, उसके बाद क्या मिलेगा? क्रोमियम, EN को वहीं पे रखा है हमने, और NH3, NH3, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। एक ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। और क्या मिलेगा आपको? दोनों क्लोरीन को इधर रख दें और NH3 को अपोजिट कर देते हैं, एक ये भी मिल जाएगा। क्रोमियम 1 2 3 EN। अच्छा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला हुआ है सर, ठीक है, खैर हटाइए, हम सारा ही बना देते हैं, उसमें से एक ऑप्टिकल आइसोमर्स को यहाँ बना दीजिएगा। एक ही का बनेगा वैसे, NH3 एंड NH3 इज हियर, और फिर यहाँ पे आपके पास क्लोरीन, और यहाँ पे भी आपके पास क्लोरीन, ठीक है। सो दीज आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स व्हिच आर पॉसिबल, मे बी और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शायद बन जाए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो, बट खैर वी कैन सी दैट हियर क्लोरीन एंड क्लोरीन आर अपोजिट टू ईच अदर एट 180 डिग्री। Here ammonia and ammonia are opposite to each other at 180 degrees, so both of these will be optically inactive, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, बट दिस आइसोमर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, और इसका आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। वी कैन मेक द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट एक मिरर इमेज बनाने के लिए राइट क्रोमियम, EN विल बी हियर, और उसके बाद NH3 के बाद इधर NH3,
उसके बाद इधर क्लोरीन और उसके बाद इधर क्लोरीन. सो दीज टू आर दी ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक है, चलिए. और इसके अलावा कुछ और आपके पास सवाल नहीं है तो आई होप, ठीक है, मेरा एक काम कम से कम ये हो गया है. नाउ यू नो कि आपको अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ना कितना है. मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. कुछ बच्चे थे जिनको दिक्कत आ रही थी. आई थिंक शाहिद वाज वन ऑफ देम, राइट? शाहिद, यस सर। किसी ने तो आपको था थोड़ा सा आइसोमेरिज्म में. आई होप अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आइसोमेरिज्म में पढ़ना कितना है. ठीक है ना? तो प्लीज आप लोग ना एक काम कीजिए, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से कर देते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट यहां से, एक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, टेक दिस स्क्रीनशॉट. आई विल वेट 5 seconds. 5, 4, 3, 2 and 1. और एक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना. ठीक है, एंड ट्राई टू रीडू दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन. अब सवाल जो है ना, इससे और आगे आपके सवाल मतलब बहुत मुश्किल है आना, है ना? ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मोस्टली यहीं से आएंगे आपके पास, जो भी सवाल आने वाला है. ठीक है, चलिए. आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो. नाउ तैयारी आप लोग जो कीजिएगा,